Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. PTV Sports के flagship football show kick-off में खुश आमदीद. Thank you for being with us this evening. It's a pleasure being in front of you and discussing football. As always, just a little break from cricket. आपने भी मैच enjoy किया PTV Sports पे और इंशाल्लाह Champions Trophy भी आप enjoy करेंगे इसी चैनल के ऊपर. लेकिन हमने कहा of course the show of football must also go on and क्योंकि इतना happening week रहा है ये, अगर हम बात करते हैं English Premier League की with the Merseyside derby, and this was the last ever Merseyside derby to be played at the Goodison, and what a match it played out to be. दो गोल से ये मैच बराबर रहता है between Everton and Liverpool, and despite this draw, Liverpool still now have a comfortable 7-point lead at the top. Lekin definitely they would have liked a win. Lekin what a turnaround for Everton since David Moyes has joined this club. साथ साथ हमने देखा in the Champions League उसके जो है round of 16 qualifiers के matches जारी थे, and a very dramatic match between Manchester City and Real Madrid, especially अगर हम fan involvement की बात करते हैं, and जिस तरह से दोनों sort of fans भी आपस में उलझ रहे थे इस मैच के अंदर, and then Real getting the better of Man City at the Etihad. So that will be a good talking point as well. उसके साथ साथ Feyenoord versus AC Milan going down, and Celtic versus Bayern Munich. Some changes in the English FA as well, and Sam Kerr जो famous Australian football player हैं, Chelsea से वो football खेलती हैं, उनका भी जो एक बहुत बड़ा केस चल रहा था वो भी drop हुआ है. So lots to talk about today's program. Let's get the show on the road. Our usual suspects have joined us in the studio as well. On my right, Usman Malik. How are you? All well? All well, Altamash, but after watching Merseyside derby, I personally think that Michael Oliver should always be banned to conduct the matches for Liverpool especially. ये इस पे हम ज़रूर बात करेंगे, but probably for me it was a daylight robbery. और besides जो सबसे बड़ा जो upset हुआ है वो Club Brugge, they have defeated Atlanta 2-1. Juventus और PSV का भी मैच काफ़ी. But Club Brugge was playing decently throughout their campaign, so you can't call this much of an upset. Well, in terms of that अगर हम ये देखें कि Atlanta finish around 9 or 10 की पोजीशन पे, Club Brugge was बहुत नीचे उन्होंने finish किया, I think बिल्कुल ही thin margin से. That way also फिर Atlanta की जो हमने last match देखा था against Barcelona, जिस तरह से वो खेले, और फिर जो उनके यूरोपियन कैंपेन हमने पिछले साल देखे और इस साल भी यूरोप में, और इवन इटली सीरिया के अंदर भी बड़ी एक अगर देखा जाए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही. तो लूजिंग अ मैच अगेंस्ट क्लब, अभी भी खैर इट्स नॉट ओवर अंटिल सो ओवर, एक सेकंड लेग ज़रूर है, बट जहाँ पे अप्रिशिएट करने की बात है, क्लब ब्रूज ने कुछ important even City के against भी जो है वो lead ले ली थी first half के अंदर. So I think in that way I would say कि ये एक ज़रा upset मुझे लगा. In Champions League I would say they have been punching above their weight this campaign. Yes, definitely that's true. Beside जो है यूरोपा की भी matches जो है वो कुछ हुए हैं, और वहाँ पे भी हमने जो है एक सनसनीखेज कुछ मैचेस देखे. तो आई थिंक ओवरऑल एक अच्छा वीकेंड था, अदर देन द मर्सीसाइड डर्बी आई वुड से. अच्छा, तो वो अच्छा वीकेंड उसने, आई थिंक दैट वाज एक मैच के अंदर जो है एक न्यूट्रल फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है, और माइकल ऑलिवर की एक हिस्ट्री चली आ रही है लिवरपूल के साथ. हम तो आपसे न्यूट्रलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं शो पे इस वक्त. नहीं आप बिल्कुल, तो मैं तो सच ही बोल रहा हूँ ना, यानी कि 20 फाउल्स लिवरपूल ने कमिट किए उस मैच के अंदर, और सिर्फ 9 फाउल जो है वो एवर्टन को दिए. बहुत सारी जगह पे बहुत सारी डिसीजन मेकिंग थी, जिस पे हम आगे ज़रूर बात करेंगे जब हम मैच पे बात करेंगे. चलते हैं थोड़ा सा टेम्पर्स को कूल करने के लिए, चलते हैं हमारे कूल काम कस्टमर अब्दुल लतीफ़ दादा भाई के पास, जिन्होंने अपने स्नीकर्स एज ऑलवेज मैच किए हुए अपने जैकेट के साथ एंड शर्ट के साथ. लतीफ़, गुड टू हैव यू. ऑल वेल, थैंक यू फॉर हैविंग मी. आई एम जस्ट फॉलोइंग योर लीड. अल्टीमेटली जिस तरीके से आपने मैच किए हुए अपने ग्रीन शर्ट एंड ग्रीन स्नीकर्स, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना करूं. अदर देन दैट अल्टीमेटली मुझे तो इनफैक्ट ये मर्सीसाइड डर्बी बहुत ज़्यादा एंजॉयबल लगी. एज ए न्यूट्रल आई हैड अ लॉट ऑफ फन, और बड़ा ड्रामा था, एक्साइटमेंट थी, और वो ऑब्वियसली गुडिसन का जो एक माहौल होता है वो बड़ा एविडेंट था. ये 120वीं मर्सीसाइड डर्बी थी, एंड द मजे का एक स्टार्ट है, दोनों ने 41 टाइम्स इसको जीता है. यस एट गुडिसन, मतलब ये बड़ा एक कमाल की बात थी. उसके अलावा अल्टीमेटली मेरी नज़र के अंदर जो चैंपियन लीग के अंदर भी जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग टाई था, PSG अपना गेम बड़ा कन्विंसिंग जीतता है. उस्मान डेम्बेले की ब्रेस आती है, और इस आफ्टर क्रिसमस जो जिस किस्म के फॉर्म के अंदर हैं वो, इनफैक्ट लुइस एनरिके ने भी मैच के बाद कहा कि मैं उस्मान डेम्बेले से पूछूंगा कि उसने क्रिसमस पे खाया क्या था. यस, एंड प्लेस्टेशन प्लेयर को उन्होंने कंपेयर किया उनसे, द प्लेस्टेशन उस्मान डेम्बेले. जी 10 मैचेस में 15 गोल आ चुके हैं. इनफैक्ट पिछले 2 हफ्ते के अंदर ही वो 10 गोल स्कोर कर चुके हैं.
मतलब रेड हॉट फॉर्म के अंदर। लिक्विप में जो फ्रांस का डेली है उसने तो कहा है कि ही इज द बेस्ट प्लेयर राइट नाउ इन द वर्ल्ड। वो थोड़ा सा मुझे if he remains injury free, मतलब 2-footed प्लेयर है ना। देखिए सबसे मजे की बात है वो फॉल्स नंबर 9 वाले रोल में खेल रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है उनको थ्राइव करता हुआ देख के, बिकॉज राइट फ्रॉम हिज डॉर्टमंड डेज द गाय हैड सो मच पोटेंशियल और फाइनली अब जाके चले वो थोड़ा परफॉर्म कर रहे हैं बड़े स्टेज पे। इट्स गुड टू वॉच दैट। अदर देन दैट अल्तमिश ऑब्वियसली सिटी रियल की जो गेम थी एक पैर में समझूंगा सिटी का बाहर हो चुका है इस टाई से। अभी पता चल जाएगा बर्नेबाउ पे कि क्या होता है, लेकिन बट ऑब्वियसली जिस किस्म के माहौल है और जो इंजरी क्राइसिस हिट की है मैन सिटी को, मैं बता रहा चलूँ अकांजी इज आउट लाइक वो 8 to 10 वीक्स के लिए। ग्रीलिश को भी ग्रोइन इंजरी हो गई थी इसी गेम के अंदर, आधे घंटे बाद उनको भी सब्स्टिट्यूट कर दिया था। सो द थिंग्स ऑब्वियसली नॉट लुकिंग गुड फॉर सिटी। सम पीपल आर सेइंग सिटी मैड्रिड वाला जो गेम इज बेटर देन सुपर बोल। अच्छा हाँ मतलब डार्बी बन गया ना, हर साल ही हमें देखने को मिल रहा है वो यूरोपियन एल क्लासिको। हाँ यूरोपियन एल क्लासिको, दैट्स द राइट वे टू डिस्क्राइब इट। बिल्कुल सही, उस मैच में भी जरूर आते हैं, लेकिन उससे पहले हम हमारा आज का शो स्टार्ट करेंगे विद द मर्सीसाइड डर्बी। दिस वाज एवर्टन वर्सेस लिवरपूल। ये मैच 2-2 गोल से बराबर रहता है। जरा इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इसे इन डेप्थ डिस्कस करते हैं। उसी मौके के ऊपर जो है एक लड़ाई होती है डॉकरे एंड कर्टिस जोन्स के बीच में, वो भी आपको हम ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन अगर इस मैच की बात करते हैं, ये मैच 2-2 गोल से बराबर रहता है जैसे हमने पहले मेंशन किया। दिस वाज द 120th डर्बी एट द गुडिसन। दोनों टीमों ने इस फिक्सचर को इस वेन्यू के ऊपर जो है 41 टाइम्स जो है जीता है। XG की अगर बात करते हैं, एवर्टन हैड अ बेटर XG कंपेयर टू लिवरपूल। इट वाज 0.95 कंपेयर टू जस्ट 0.65 ऑफ लिवरपूल एंड 3 शॉट्स ऑन टारगेट फॉर एवर्टन, 4 शॉट्स ऑन टारगेट फॉर लिवरपूल। एक और बड़े मजे की बात थी, जो फैंस का बैंटर आपस में चल रहा था। लिवरपूल के फैंस जो है एक बड़ा अच्छा बैनर यहाँ पे लाए थे, क्योंकि गुडिसन पार्क से ये मूव हो रहे हैं अपने नए स्टेडियम पे। तो लिवरपूल के फैंस एक बैनर लाए थे कि इट्स वेरी इजी टू मूव विद एन एम्प्टी कैबिनेट, यानी कि एवर्टन ने कोई जीता ही नहीं है। और फिर वो आपस में फैंस गा रहे थे, एवर्टन के जो फैंस हैं वो गा रहे थे यू लॉस्ट द प्रीमियर लीग एट गुडिसन, और वो वहाँ से गा रहे थे वी वन द प्रीमियर लीग एट गुडिसन इन डिफरेंट सीजन्स। लॉट्स टू टॉक अबाउट एंड लेट्स गेट टू उस्मान। जी उस्मान, जी बिल्कुल, ओवरऑल अगर हम बात करें, एक तो ये जो फिक्सचर था ये दिसंबर में होना था और ड्यू टू द बैड वेदर इसको जो है वो डिले होना पड़ा। और उस टाइम पे भाई किस्मत चाह रही थी कि डेविड मॉयस आए। एग्जैक्टली, मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि दोनों टीम्स का हालांकि अपने कप मैचेस जो हैं हारी, और लिवरपूल स्पेशली जो है प्लेमोथ से हारी, और वो ज़्यादा फोकस यही था बिकॉज इट्स लाइक द बिगेस्ट गेम। और जिस तरह की राइवलरी है उस शहर के अंदर, मेरा अक्सर जो है वो जाना होता है एंड डेफिनेटली इट्स लाइक समथिंग, काफ़ी लड़ाइयाँ भी होती है। और ब्लू शर्ट बन के घूम रहे होते हैं वहाँ पे? नहीं, मैं रेड शर्ट ब्लू स्टेडियम में जाके पहनता हूँ, तो ये ज़रा थोड़ा हमारा भी वो है। बट आई थिंक अगर मैच की बात करें तो बिल्कुल ऐसा ही है। दिसंबर में एवर्टन की बहुत बुरी फॉर्म चल रही थी। आई थिंक दैट वाज अ फेवरेबल टाइम आई वुड से जिसमें, बट यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो एक तो मैंने माइकल ओलिवर का जिक्र किया जिन्होंने पूरे मैच को जो है ना वो ख़राब कर दिया, और वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। उनकी बिल्कुल हिस्ट्री नहीं। और आई थिंक जो एक बायस्ड रेफरीज हैं उन पे ज़रूर एक स्टर्न एक्शन लेना चाहिए। अभी लेटली हमने एक वाक़या देखा था जब एक रेफरी ने जो है योर्गन क्लॉप के हवाले से या लिवरपूल के हवाले से जो कमिट किया, वो जो बातें कन्फेस की थी। मैच पे आते हैं, डेफिनेटली इट वाज अ डिफ़िकल्ट मैच। जो एक क्राउड है तो लिवरपूल ही, गुडिसन भी, एवर्टन इज़ पार्ट ऑफ लिवरपूल, और बिल्कुल आखिरी मैच था गुडिसन का, और डेफिनेटली द होल टीम, द क्राउड, द फैंस, दे वांटेड कि हमारा जो ये आखिरी मर्सीसाइड डर्बी है वो एक बड़ा एक लीथल किस्म का हो, एक ओल्ड स्कूल डर्बी। और हमने देखा भी मेहम, ऐसा लग रहा था बाद में तो एक रग्बी मैच में वो कन्वर्ट हो गया। और एवर्टन के लिए ये मैच बिल्कुल सही कहा वर्जिल वैन डाइक ने कि किसी कप फाइनल से कम नहीं था, और ड्रॉ करके भी वो ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे जैसे पता नहीं वो कौन सी ट्रॉफी जीत गए। बट यहाँ पे थोड़ा सा आपकी टोन में थोड़ा सा मुझे वो लग रहा है, एक तंज लग रहा है, बायसनेस लग रही है, अगर आप ऐसे कह सकते हैं। बट अच्छा, मैच की शुरुआत डेफिनेटली लिवरपूल की जो, अगर मेरी आपकी लड़ाई हो जाए, हमारी बॉडी फ्रेम देख के अगर मैं न्यूट्रल भी आपको कर दूं तो मैं तो विनर ही समझूंगा ना। बिल्कुल क्या ख्याल है? मैं समझता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम पूरे मैच की बात करें 97th मिनट पे जाके या 98 मिनट पे जाके, जबकि 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम था, तो उस लिहाज से देखा जाए और 2 एवर्टन के प्लेयर्स कोलैप्स करते हैं। ऐसा भी नहीं था कि किसी लिवरपूल प्लेयर ने जो है ना टैकल किया हो या कोई फाउल जीता हो, उसकी वजह से जो है वो मैच आके ड्रैग हुआ। और जेन्युइन रीजन नहीं था आपके हिसाब से वो?
जेन्युइन रीजन क्या था, मो साला जो है वो बीच में दो एवर्टन के प्लेयर जब आपस में टकरे हैं तो टाइम तो उन दोनों प्लेयर्स से कसूर है, तो इसमें किसी और का कसूर तो नहीं है। हो सकता है इनका एक ड्रामा हो सकता है, ड्रामा नहीं क्या है। बट अगर हम मैच की हम थोड़ी सी बात करें के पास चलते हैं, इससे पहले मैं सिर्फ थोड़ा सा मैच की शुरुआत डेफिनेटली बेटो को एक मौका मिलता है, वो भी एक डिबेटेबल फाउल था। उसके बाद पहला गोल होता है, 4 मिनट के बाद जो है मो साला का क्रॉस आता है, उसके बाद मैकएलिस्टर स्कोर करते हैं। और फिर सेकंड हाफ के अंदर डेफिनेटली जो हमने देखा है कि सेकंड हाफ के अंदर लिवरपूल हमेशा दे ऑलवेज कम बैक स्ट्रांगली, वो नहीं था रीज़न। लेकिन उसके बावजूद जो है वो कर्टिस जोन्स की जब आमद होती है और उसके बाद साला स्कोर करते हैं। Yes, तो बिल्कुल fair play to Everton. They really had Liverpool where they wanted them to be. No, but even Arne Slot has admitted this in his press conference as well. आपसे ये बताएं कि एक टीम जो मैच जीत चुकी है 95-96 वो ड्रैग क्यों हुआ? जी प्लीज। वो तो ड्रैग हुआ क्योंकि एक जेन्युइन इंजरी हुई थी, तो वो ज़ाहिर टाइम एक्सटेंड करना था। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चीज़ कॉमन है, सिर्फ इस मैच में ऐसा नहीं होता है, हुआ था। बट अल्टीमेट साला का जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल भी आता है, असिस्ट भी आती है, और अब 22 अवे गोल कंट्रीब्यूशंस इन दिस सीजन हो गई, और उन्होंने एंडी कोल का जो रिकॉर्ड था 93-94 का, उसको बीट किया। तो साला इतने रेड हॉट फॉर्म के अंदर है कि वो उसको देखने का वाकई एक बड़ा लुत्फ आ रहा है सीजन। लेकिन जो मैं कहूँगा, डेफिनेटली कहूँगा कि जो पहला गोल था, जैसे लिवरपूल वो नॉट प्रिपेयर्ड, वो जो क्विक फ्री किक ली थी एवर्टन ने, और वो बेटो ने जाके, डकोरो की फ्री किक थी, कीपर अपनी पोजीशन में नहीं थे, बेटो ने जाके एम्प्टी गोल के अंदर डाला, तो वो तो लिवरपूल का कसूर था उसके अंदर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसके बाद जो साला का भी जो गोल आया था, मैं समझता हूँ इट वाज अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, क्योंकि सेकंड हाफ के अंदर हमने देखा हैरिसन को, डकूरे को मौके मिले थे, राइट। तो ऐसा नहीं था कि मतलब इट वाज ऑल वन साइडेड और मतलब अचानक से एवर्टन ने वो कर दिया था। सेकंड हाफ में दे प्लेड बेटर, नो क्वेश्चन अबाउट इट। और ओवरऑल जो ना ये बहुत ही एक इट वाज राइडिंग हाई ऑन इमोशंस। जो क्राउड का एक अफेक्ट था वो प्लेयर्स के अंदर ट्रांसलेट हो रहा था कि एवर्टन 100% से भी ज्यादा दे रहे थे। एवरी प्लेयर was playing with so much passion and with the heart on their sleeve, जिसे हम कहते हैं, वो नजर आ रहा था। हर कोई एक्स्ट्रा दे रहा था अपना, और वही देखने का एक मजा आ रहा था कि they were riding that wave from the crowd। जो 12th मैन वाला जो अफेक्ट होता है इस मैच में इतना नुमाया हुआ। और जब मैच खत्म हुआ उसके बाद का जरा हमारे नाज़रीन को दिखाते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ। और इस पूरे मुहिम के अंदर हमने देखा विद डॉकरे एंड कर्टिस जोन्स, लेकिन प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हुए, और साथ साथ आर्ने स्लॉट जब रेफरी से बात करने गए उनको रेड कार्ड दिखा दिया गया। एंड अनफॉर्चुनेटली अब अगले हिस्सा का नहीं होंगे। डेविड मोइस अगेन ही वाज वेरी गुड इन हिज, जारी बात है उनका इतना एक्सपीरियंस है, ही डिड से कि थोड़ा सा जो है रेफरी वाज नॉट फेयर इन दैट सेंस। ही डिडंट यूज द वर्ड फेयर, बट ही डिड से कि ओवर ज़्यादा चीज़ ये हद से ज़्यादा पार जरूर डेफिनेटली हो गया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अल्तमश, देखिए वो इंसिडेंट जो था इसमें सीधे डकोरे की गलती थी, बिकॉज ही वाज गोइंग इन फ्रंट ऑफ लिवरपूल फैंस टू सेलिब्रेट। कर्टिस जोन्स डिड द राइट थिंग बाय गोइंग देयर एंड स्टॉपिंग हिम, बिकॉज अगर फैंस को आप इस तरीके से इंस्टिगेट करोगे तो बात ज्यादा बढ़ सकती थी। तो इस वजह से दोनों को येलो कार्ड मिला, और वो ऑब्वियसली बोथ वर ऑलरेडी ऑन येलो, तो रेड कार्ड में कन्वर्ट हो गया। बट कर्टिस जोन्स डिड नॉट स्टॉप हिम, ही पुश्ड हिम। वो लेकिन जो उनका जो मूव था ना डकोरे का लिवरपूल फैंस के सामने जाके सेलिब्रेट करना, वो सही नहीं था। और जो स्लॉट वाला जो इंसिडेंट था, उसने रेफरी का इतना जोर से हाथ मिलाया और हाथ छोड़ने की, वो हाथ छोड़ ही नहीं रहा था, तो रेफरी को मजबूरन उस वक्त रेड कार्ड देना पड़ा। और प्लस जो उनके असिस्टेंट कोच थे उनको भी रेड कार्ड मिला। तो 4 रेड कार्ड्स थे इस गेम के अंदर। अब अगेंस्ट इन द प्रीमियर लीग, आई थिंक मुझे याद नहीं नेक्स्ट मैच उनका किसके अगेंस्ट है, बट अब देखने बेंच पे होगा कौन, बिकॉज कोच भी नहीं, असिस्टेंट कोच भी नहीं, तो जॉनी हाइटिंगा को शायद बिठाएं। ही इज आल्सो पार्ट ऑफ देयर सपोर्ट स्टाफ। उस्मान हो जितने पैशनेट से हुए। बिल्कुल आपकी बात मैं बिल्कुल समझता हूं। अगर एक मैच ड्रॉ होने के बाद आप किसी राइवल फैंस के सामने जाके इस तरह के अगर आप इंस्टिगेट कर रहे हैं, तो आपकी ये विनिंग मेंटालिटी शो करती है। आई थिंक इट्स अ फेयर कमेंट व्हिच आई एम सेइंग। नो उस्मान, एवर्टन 15-14 की टीम है इस वक्त, बिल्कुल वो तो रेलेगेशन में थे। आखिरी मैच है गुडिसन पे, जाहिर बात है टेम्पर्स वर आउट ऑफ द स्टेडियम राइट नाउ। दे प्रोबब्ली थिंक एंड यू सॉ, एंड इवन लिवरपूल नंबर 1 पे, राइट। अब इतना ऊपर होने के बाद अगर उनके फैंस, लिवरपूल के फैंस एवर्टन को टॉन्ट कर रहे हैं, तो जाहिर बात है इट्स मोर देन द नंबर्स राइट नाउ। एट द एंड ऑफ द डे, अगर जब ये कैंपेन खत्म होती है, सुना मैंने क्या मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, और समहाउ आर्सेनल ले जाती ट्रॉफी। ये 2 पॉइंट्स
ये बड़े क्रूशल 2 पॉइंट्स हैं जो कि आपने नहीं तो आप क्यों समझ रहे हैं कि मतलब कि वो गोल डिजर्व नहीं कर रहा था लिवरपूल? वो ऑफसाइड के बारे में वार की डिबेट थी कि बस वो गोल है कि नहीं है, लेकिन वो फिर वार ने 98 मिनट तक ये गेम अच्छा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए था। अच्छा आपका पॉइंट मैं समझ रहा हूँ आपकी बहस इस बात पे थी कि वो ऑफसाइड था कि नहीं था, क्योंकि जानी चाहिए थी। बहुत सारे मैचेस ऑलरेडी सीजन में हो चुके हैं जहां पे बहुत चीजें डिबेटेबल रही हैं। तो वो तो हर मैच में कहीं ना कहीं ये चीज हो ही जाती है, तो एक चीज को वो नहीं बना सकते ना कि बस इसकी वजह से अब ये हम हो जाएगा। लेकिन मैं उस्मान को चलो एक खुशखबरी दे दूं ना कि अभी बहुत जल्द एफए कप के अगले राउंड में तो अनाउंस हो गया है कि सेमी ऑटोमेटेड जो ऑफसाइड होती है वो आ रही है इंग्लैंड के अंदर। और उस्मान के लिए बैड न्यूज़ है, प्लेमेट से हार के बाहर हो गए, तो जरा सुनते हैं कि उस्मान के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। डेविड मोइज और अर्ने स्लॉट ने क्या कहा इस मैच के बाद। The last words and the words of comfort and solace for my man Usman over here. Arne Slot saying we created hardly anything at all, and that should settle the debate. This was a good match between the two teams, and दो से खत्म होता है। जो बेहतरीन ड्रामा सारे फैंस को देखना था एट गुडिसन वो उनको देखने को मिला। Time to move on. Let's talk about the Champions League, and जो सबसे बड़ा मैच मिडवीक चैंपियंस लीग में था was between मैनचेस्टर सिटी एंड रियल मैड्रिड। रियल जो है जाता है इतिहाद पे 3-2 की स्कोर लाइन से मैच जीतता है। जरा इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इसको डिस्कस करते हैं। The two top managers embracing themselves, Ancelotti and Pep Guardiola, but the reality is कि इतिहाद पे Real came and beat Real Madrid with a scoreline of 3-2. Mbappe, Diaz and Bellingham at the end scoring, and उनकी जानिब से 2 goals from Erling Haaland। अब उनके 49 goals हो चुके हैं चैंपियंस लीग के अंदर। बट सिटी का एक बड़ा टेलिंग स्टार्ट है, पिछले 4 मैचेस में व्हेन दे हैव स्कोर्ड फर्स्ट दे हैव एक्चुअली गॉन ऑन टू लूज द मैच। इस मैच में भी काफ़ी फैन इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिली। इनफैक्ट बहुत बड़ा टीफो अनवील करते हैं सिटी के फैंस। रॉड्री की तस्वीर होती है और उस पर ओवेसिस जो फेमस रॉक बैंड है जो सपोर्टर है मैन सिटी का, उनका गाना जो है उस पर लगा हुआ होता है एंड समथिंग अबाउट क्राइंग, क्योंकि ज़ाहिर बात है रियल मैड्रिड केम टू इत्तेहाद एंड दे वर वेरी अपसेट कि ये जो है विनीसियस को नहीं मिला और रॉड्री को ये चीज़ मिल गई। रॉड्री जो थे वो स्टैंड में खड़े होकर स्टीफो की तस्वीर भी ले रहे थे। तो इस मैच के अंदर भी बहुत फ़ैन इन्वॉल्वमेंट थी और बहुत सारा ड्रामा था फैंस को लेके आपस में। जी उस्मान। जी बिल्कुल। आई थिंक सिटी के साथ हमने कितनी दफ़ा देखा है इस सीज़न के अंदर, चाहे वो फायनॉर्ड हो चाहे PSG हो, हमने कैसे रिजल्ट्स देखे। आई थिंक विद अ डिसेंट साइड दे ऑलवेज कोलैप्स। और प्रॉब्ली आई थिंक लगता यही है कि आपने रॉड्री का जिक्र किया है तो कुछ क्या सराई है कि रॉड्री वुड बी पार्ट ऑफ सेकंड लेग। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है गुड लक वो अपने साथ लेकर आए और वापस सिटी को रिवाइव करे। लेकिन इस टीम के अंदर उम्मीद ख़त्म हो चुकी है, आइडेंटिटी ख़त्म हो चुकी है। अगर हम मैच की भी बात करें, जिस तरह की शुरुआत थी, हालान वॉज वेरी क्लिनिकल, ग्रिलिश का बड़ा बेहतरीन एक पास था जिसमें ग्वार्डियोल जो है ना वो इस वक्त आधी टीम को संभाल के बैठे हुए हैं, और जो जैसे उन्होंने एक अपने चेस्ट से जो है वो बॉल डाउन करके बना के दी हालान को, उन्होंने पहला गोल किया। उसके बाद कई ऐसे मौके हैं जिसमें एम्बापे कुड हैव स्कोर्ड लाइक 2 goals एटलीस्ट। विनीसियस ने वुडवर्क हिट किया, इवन सिटी ने भी बाद में 2 दफ़ा वुडवर्क हिट किया, लेकिन कोई चांस क्रिएशन नज़र नहीं आ रही थी, कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ फाइनल थर्ड में वो क्रिएट करेंगे। बट जब सेकंड हाफ के अंदर पेनल्टी जो है वो सिटी ने जीती, हालान ने 2-1 की लीड थी, 85th मिनट हो चुका था, 5-7 मिनट 8 मिनट की बात थी। और वहाँ पे मुझे हमेशा ऐसा लगा है पेप गार्डियोला को कि आई थिंक ही इज़ नॉट द सेम पर्सन। वो हमेशा इस तरह की जो चेंजेस करते हैं, और ख़ास तौर पे अकांजी हैड अ बैड हाफ, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन उनको चेंज करके रिको लुइस को आप लेके आ रहे हैं राइट हैंड साइड पे, आपने अपने आप को बिल्कुल एक्सपोज कर दिया इन फ्रंट ऑफ विनीसियस। मजबूरी थी ना, बिकॉज़ उनको इंजरी हो गई थी। उनको इंजरी अगर होगी तो, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है प्रॉब्ली नूनेस कुड हैव बीन एन आंसर, लेकिन रिको लुइस एक उस स्पॉट पे पूरी कंप्लीटली एक्सपोज हुए। और फिर यही हुआ, हमने 85th मिनट के बाद जो है ये देखा, जो 2 गोल जो कंसीड किए, जो कि एक बिल्कुल एक हैबिट बन चुकी है। हमें 2022 की याद आ गई, जो एम्बापे ने जिस तरह का शॉट लिया, मुझे लगता थोड़ा सा वो ये था कि वो मिस हिट थी और उसके बावजूद इट वेंट इनटू द गोल। और फिर बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ऐसा लग रहा था कि शायद ये ड्रॉ होगा, लेकिन कितना एक्साइटिंग मैच था जिस तरीके से विनीसियस ने बॉल जीती और फिर लूप किया और बेलिंगम ने फिनिश किया। इब्राहिम डियाज ने उनका जो दूसरा गोल उनका आया था और तीसरा जो है वो बेलिंगम का आया था, और आई थिंक प्लेट में रख के जो है रियल मैड्रिड को दे दिया। और अब लगता यही है जिस तरह की ओवर स्पेंडिंग की है, एक पैनिक बटन दब चुका है। 200 से ज़्यादा के मिलियन के प्लेयर्स खरीदे और सब महंगे प्लेयर,
उनको किसी को वो लेके नहीं आए और उनकी कोई वो नज़र नहीं आई कि वो कुछ जो होता है। आई थिंक ये ओवरऑल एक बहुत बड़ा एक कोलैप्स चल रहा है और लग ये रहा है कि प्रॉब्ली रॉड्री एक जो है वो सिटी को रिवाइव कर दे। लगता तो ऐसे जिस तरह से उन्होंने जिताया कितनी दफ़ा, बाकी टीम के अंदर कोई दम नहीं, कोई टैक्टिक्स नज़र नहीं आ रहे। अनफॉर्चुनेटली लग यही रहा है कि बर्नाब्यू में जो है ना शायद एग्जिट करना पड़े सिटी को। बिल्कुल जी लेती अल्तमिश, मेरी नज़र में तो एक सिंपल सिचुएशन है कि दे आर जस्ट मेंटली ड्रेन्ड। गार्डियोला का जो कोचिंग स्टाइल है, मतलब एक इतनी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी होती है, वो इतना ज़्यादा ग्रिल करते हैं अपने प्लेयर्स को टैक्टिक्स के साथ और इंस्ट्रक्शंस के साथ और सब चीज़ों के साथ, मतलब यू नो रिलेंटलेस प्रेशर होता है गार्डियोला का अपने प्लेयर्स के ऊपर। तो एक मेंटल फटीग है, द प्लेयर्स आर जस्ट नॉट रिसीविंग द मैसेज एंड यू नो डिलीवरिंग। इस गेम के अंदर 2 मिस्टेक्स एडरसन ने जब कर दी तो फिर क्या बचना था गेम के अंदर। एडरसन की हमने कितनी फॉर्म इस सीजन ड्रॉप होते हुए देखी है टाइम एंड अगेन एवरी, और फिर उसको अगले मैच में ओर्टेगा को ले आते हैं, फिर एडरसन आ जाते हैं, तो ये पूरा एक मेहम बना हुआ है। यू कैन नॉट डू दिस एट द टॉप लेवल। आपने अपना एक नंबर 1 सेलेक्ट करना होता है और फिर आपने उसको बैक करना पड़ता है। आपने एडिसन को ला के निकाल के उसका भी कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया आपने। ये पेप को मैं डेफिनेटली ब्लेम करूंगा। अगर वो समझते हैं ओर्टेगा बेहतर है तो बस खत्म हो गई बात, फिर ओर्टेगा को कंटिन्यू करो। फिर हर मैच में जो गोलकीपर जब चेंज होता है ना अल्तमिश, तो बैक 4 के साथ जो केमिस्ट्री होती है वो भी अफेक्ट होती है, पूरी टीम हिल जाती है। गोलकीपर बाहर देखने में लोग समझते हैं कि यार जस्ट अ कीपर, राइट, लेकिन इट्स नॉट जस्ट अ कीपर। पूरी गेम को पीछे से चलाते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है कीपर की। और मैन सिटी जैसे क्लब के अंदर इतना इंपॉर्टेंट होता है गोलकीपर का रोल, बिकॉज वो अटैक शुरू ही गोलकीपर से होता है, उसी के पास से मतलब फिर बॉल आगे पहुंचाई जाती है। तो इट इज ऑन गार्डियोला। एंड बड़े मजे की एक बात कि सिर्फ चैंपियन लीग की इस कैंपेन के अंदर आखिरी 16 मिनट के अंदर 9 गोल कंसीड कर चुके हैं वो, और 57 गोल्स इन 38 मैचेस। और जो कोलैप्सेस हैं उनके, यू नो, फाइनवुड का 3-0 अप थे वो अगेंस्ट पीएसजी, दे वर 2-0 अप अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, दे वर 2-0 अप, राइट, अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड भी 87 मिनट से 2-1 लीड कर रहे थे, फिर जाके मैच हार जाते हैं आखिर के अंदर। तो टाइम एंड अगेन इस सीजन हमने देखा है मैन सिटी को कोलैप्स करते हुए। तो ये कोई वन ऑफ चीज या कोई इस टाइप की चीज नहीं कि भाई सिर्फ हम एडिसन के एरर हो गया, कुछ अंडरलाइंग इश्यूज हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक मेंटल फटीग, आपने जो इतने समर्स गुजारे, इतना अरसा गुजारा है और टीम को जो रिफ्रेश नहीं किया है, तो वो, और जनवरी में इस तरीके की पैनिक बाइंग की है, तो वो इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखें अभी समर के अंदर सिंपल जो होगा ना, गुंडगन, केडीबी, बर्नार्डो सिल्वा, एडरसन, इन सारे बड़े प्लेयर्स की छुट्टी होगी, चाहे गार्डियोला खुद रहें या नया बंदा आए, मैनेजर चेंज हो, कुछ भी हो। दीज ओल्ड फोक्स आर नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल। एंड अब वो सारा जो बात हो रही है मीडिया के अंदर, वो लोग कह रहे हैं कि भाई ये चिकी ब्रिगनस्टाइन जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे, उनकी मिस्टेक है, उन्होंने समर में क्यों नहीं रिफ्रेश किया। तो वो उसका काउंटर यही है कि गार्डियोला ने रिफ्रेश करने नहीं दिया उनको, इतनी चेंजेस करने दी नहीं गार्डियोला ने, बिकॉज बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं, उनकी रिलेशन भी बहुत अच्छी है। और गार्डियोला की एक जो से है वो स्पोर्टिंग डायरेक्टर से भाई ऊपर है। साफ बात ये है, क्योंकि गार्डियोला के माइंड के अंदर यही था कि दिस इज गोइंग टू बी हिज लास्ट सीजन, ही डिडंट वांट टू चेंज एनीथिंग। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन प्लेयर से एक और मजीद सीजन की परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन जब उन्होंने अक्टूबर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन की, तो दैट वाज अ सरप्राइज टू हिज फैमिली एज वेल, जहां से फिर उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर डिवोर्स वगैरह और जो इश्यूज हुए हम बात कर चुके हैं। तो ये एक मेन मैं समझता हूँ क्रक्स है, जहाँ पे एक डिस्कनेक्ट हमें देखने को मिलता है बिटवीन द मैनेजर एंड द क्लब एंड हिज स्ट्रैटेजी। वहाँ पे बेचारे फैंस भी रुल गए। फैंस बड़ा एक ज़बरदस्त टीफो उठा के अपने साथ लाए, स्टॉप क्राइंग योर हार्ट आउट। ओएसिस का गाना है, रॉड्री की तस्वीर बनी हुई थी, इट वाज अ क्लियर डायरेक्शन एंड ट्रोलिंग टू रियल मैड्रिड। बड़े मजे से वो लीड भी कर रहे थे और फिर जाके वो मैच हार गए। ज़रा देखते हैं हुआ क्या। Classic example of a tifo going wrong, this time in Man City's not their favor and ये रॉड्री को बैक कर रहे थे और इसके बरक्स ही हो गया। रियल ने आके यहाँ पे जीत गए अपना मैच। अब आगे बढ़ते हैं। just like to just add one thing, इस गेम के बाद विनीसियस ने कहा कि that tifo actually motivated him to give his all and perform better because मैच परफॉर्मेंस because first half के अंदर एक उनको पेनल्टी की अपील भी थी, वो इसलिए सिर्फ नहीं मिली बिकॉज वो ऑफसाइड पोजीशन में थे उस वक्त। अदर देन दैट उन्होंने बाहर भी हिट किया, तो विनीसियस looked like a man possessed। आखिरी गोल के अंदर भी जो उनका रन था और फिर वो रिको लुइस की जो मिस्टेक होती है, फिर बेलिंगम को बना के देते हैं, तो वो टीफो जो है कंप्लीटली बैकफायर कर गया। और दूसरी बात ये कि मैनचेस्टर सिटी की 2018 से एट होम इन यूरोपियन कंपटीशन जो एक अनबीटन स्ट्रीक थी
35 मैचेस की, विच इज द थर्ड लॉन्गेस्ट इन यूएफा हिस्ट्री, वो भी इस मैच में एंड हुई। और अब I think they're humble now. They are humble, truly. इससे मुझे ओवेसिस का एक और गाना याद आ गया। सुना दे, कुछ बोल गुनगुना दे अल्तमश। Don't look back in anger, I heard you say. Oh man, let's move on. चलें जी, let's discuss Feyenoord versus AC Milan. उसके हाइलाइट्स देखते हैं। 1-0 से डच साइड जीती और फिर आगे इसको डिस्कस करते हैं। 1-0 के स्कोर लाइन से डच साइड जीती है, having a pretty decent run in the UEFA Champions League, and AC Milan have been able to turn things around since the new manager, but यहाँ पे they fell a little short, and 3 मिनट के अंदर ये गोल आ जाता है, the fastest in the history for this club since 1971. जी इस्मान। जी बिल्कुल, यूवेंटस के अगेंस्ट ये और जो हमने मैचेस देखे मिलान के, उनके हमने कमबैक्स देखे, लेकिन इस मैच के अंदर अनफॉर्चुनेटली वो बात बिल्कुल भी नहीं थी। इवन दो ऑन पेपर अगर देखा जाए तो क्या टीम खिलाई है, काइल वॉकर्स, राइंडर्स, फिर पुलिसिक, जॉ फीलिक्स, इतनी अटैकिंग टीम खिला दी। थोड़ा सा मुझे लगता है बैलेंस करने की जरूरत। राफेल लियाओ और ये जो 2 प्लेयर हैं जॉ फीलिक्स और राफेल लियाओ, ये बिल्कुल ट्रैक बैक प्रेस नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से जो है फाइनोर्ड, हालांकि फाइनोर्ड इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी ट्रांजिशनल टाइम। 1 हफ्ता पहले ही उनके कोच को जो है वो सैक किया गया और नए कोच थे, और डोमेस्टिकली जो भी उनके रीजनिंग है उसकी वजह से, लीग की पोजीशन की वजह से। बट यहाँ पे हमने देखा एक दफ़ा वुडवर्क पे हिट किया, पहला गोल 3 मिनट में आ गया, और उसके बाद ठीक है AC मिलान ने 12 शॉट्स तो क्रिएट किए अगेंस्ट फाइनोर्ड के 11, लेकिन इफ़ यू आर ट्रेलिंग तो आपको इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत थी। बट नॉनदलेस इज़ अ वेरी स्लिम लीड, क्योंकि अब अगला जो फिक्सचर है वो सैन सीरो में है, और हमने देखा है कि मिलान जो है वो वहाँ का एटमॉस्फेयर और फिर वो सारी चीज़ें, उसमें लगता यही है कि वापस आएगी टीम, और जिस तरह का टाइम चल रहा है फेयनॉर्ड का, मुझे लगता है कि शायद वापस आए। बट अगर हम इस मैच की बात करें, इट वाज अ डिफ़िकल्ट मैच, एक अवे जगह पे जाके और परफॉर्मेंस, लेकिन जिस तरह की टीम थी, जैसी अटैकिंग प्रोग्रेस थी, आई थिंक उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि दे शुड हैव क्रिएटेड मोर, और उनको एटलीस्ट 1 गोल ज़रूर स्कोर करना चाहिए था, एक ड्रॉ हो जाता। बट अब वो जाएंगे सेकंड लेग में ट्रेलिंग, और अगर उन्होंने जिस तरह से यहाँ पे दे वर ट्रेलिंग, जिस तरह से उन्होंने खेला, अगर इस तरह से खेलेंगे तो डेफिनेटली दे हैव अ चांस टू एक्चुअली गेट आउट ऑफ द टूर्नामेंट। बिल्कुल सही जी लतीफ़। अल्तमश 4-2-4 की फॉर्मेशन है AC मिलान की, बिल्कुल, और जैसे उस्मान ने बताया कि लियाओ और फीलिक्स जो है बिल्कुल भी ट्राई बैक नहीं करते, कोई डिफेंसिव ड्यूटी नहीं करते, तो टीम फिर उससे अनबैलेंस हो जाती है। यू कांट कैरी 2 पैसेंजर्स, एक पैसेंजर तो चलो आप कैरी कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऑब्वियसली ये मिड सीजन के अंदर ये इंट्रोड्यूस की गई है ये फॉर्मेशन, तो ट्रेनिंग ग्राउंड पे भी इतना मौका नहीं मिला है, तो अगेंस्ट बेटर ऑपोजिशन इन चारों में से एक को आपको बिठाना पड़ेगा, और मे बी यूज दैट गाय एज अ सुपर सब, क्योंकि फाइनोर्ड कंप्लीटली रिलाई कर रहा था काउंटर अटैक के ऊपर, और वो उनकी जो फिलॉसफी थी वो यहाँ पे बड़े इस मैच के अंदर सक्सेसफुली कर पाए। वो उनके जो स्ट्राइकर थे, वो विंगर थे, आइगोर पैक्सियो उनका गालिबन नाम है, तो उन्होंने कॉन्स्टेंटली काइल वॉकर को विंग पे बहुत ज़्यादा ट्रबल किया, मतलब मेन अटैकिंग थ्रेट वो थे। जो पहला गोल भी आया कि वो माइक मेनियन जो कीपर थे उनकी मिस्टेक थी कि वो बेसिकली बॉल स्लिप हो गई उनके हाथों से और वो गोल होता है यहाँ पे। लेकिन उसके बाद भी पैक्सियो ने बार हिट किया करांजा के लिए, बिकॉज उन्होंने एक अच्छा चांस क्रिएट किया था, तो ही वॉज द मेन डिफरेंस। और जो काइल वॉकर को भी जिस तरीके से उन्होंने पूरी गेम में परेशान करके रखा, उसके अलावा एसी मिलान डिड नॉट क्रिएट एनी क्लियर कट चांसेस कि मैं कहूँ कि यार नहीं एसी मिलान डिजर्व करता रहा। लेकिन सही है, जस्ट द हाफ टाइम में हम इसको समझेंगे, बिकॉज अब सैन सीरो पे इट्स गोना बी अ डिफरेंट टाई, और वहाँ भी शायद थोड़ा अटैकिंग बैलेंस और डिफेंसिव बैलेंस थोड़ा मैनेज करने की जरूरत है। शायद 4 एक साथ ना खिलाएं, किसी एक को बेंच से लाना पड़े। सैंटियागो हिमेनेज़ भी कंफ्यूज हो गए थे कि फाइनोर्ड से खेल रहे हैं या मिलान, ये भी थोड़ा सा एक मसला था। शुरू में जिस तरह से वो एम्ब्रेस कर रहे थे अपने पुराने प्लेयर्स को, अपने पुराने टीममेट्स को, बिल्कुल आपने सही बात कही है। कुछ कहना चाह रहे थे आप? बस तो अल्तमश यही है कि अब हाफ टाइम के बाद हम देखते हैं कि सेकंड हाफ के अंदर एट सैन सीरो किस का माहौल होता है और क्या बनता है। लेकिन मतलब आई वुड स्टिल पिक मिलान टू गेट द बेटर ऑफ फाइनोर्ड। और मुझे फाइनोर्ड के जो नए इंटरिम मैनेजर है उनका नाम भी मुझे बड़ा पसंद है, बॉसचार्ट नाम है उनका। तो बॉसचार्ट साहब देखते हैं कि किस तरीके से रोक पाएंगे एसी मिलान को, बट आई स्टिल पिक मिलान टू गो थ्रू।
वेरी नाइस, क्योंकि जाहिर बात है ये राउंड ऑफ 16 के जो प्ले ऑफ्स इसके अंदर ये चल रहे हैं। अगला मैच हम डिस्कस करेंगे सेल्टिक वर्सेस बायर्न म्यूनिख, और इन्होंने साब्स की बात कर ली तो ब्रेंडन रॉजर्स को शिकस्त होती है विंसेंट कंपनी के हाथों। अब एक और लेग इसका डेफिनेटली बाकी है म्यूनिख के अंदर, बट इन ग्लासगो बायर्न म्यूनिख केम एंड दे वन दिस मैच। इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इसे डिस्कस करते हैं। हैरी केन अपने फैंस को अपलॉड करते हुए, एंड मज़े की बात है कि 19 गोल्स अब हैरी केन जो है कैशमर स्माइकल के अगेंस्ट स्कोर कर चुके हैं, 5 मोर देन एनी अदर गोल कीपर दैट ही हैज स्कोर्ड अगेंस्ट। एंड वी हैव टू रिमेंबर द टाइम जब स्माइकल जो थे वो लेस्टर के साथ थे एंड हैरी केन वाज विद टॉटनहम हॉटस्पर्स। एंड ये मैच जो है 2-1 के स्कोर लाइन से जीतता है बायर्न म्यूनिख। एंड अगर हम सेल्टिक की भी बात कर लेते हैं, वहाँ पे जो थे माइडा जो उनके प्लेयर हैं वो ही इज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द क्लब हिस्ट्री जिन्होंने 4 चैंपियंस लीग के गोल किए हैं। लेट्स सी हाउ दिस टाइप फीचर्स इन द अदर वन इन म्यूनिख, लेकिन यहाँ पे बायर्न म्यूनिख प्रीटी मच गेटिंग थ्रू दिस वन एंड गेटिंग अ गुड लीड गोइंग बैक टू देयर होम। जी उस्मान। नो डाउट स्कॉटिश लीग की इतनी जो है ना, इतनी हम ये बात करते हैं कि अगेंस्ट जाइंट लाइक बायर्न म्यूनिख और वो सारी चीज़ें, लेकिन सेल्टिक पार्क पे जाके खेलना कोई आसान काम नहीं है। बहुत एक अर्ली ब्रेक मिलता है सेल्टिक को और वो गोल जो है डिसअलाउ हो जाता है, और उसमें डिसअलाउ होने की वजह भी ये थी कि जो फॉरवर्ड प्लेयर है उनके वो जो है वो बॉल को छोड़ते हैं और गोल नेट के अंदर चली जाती है, और इस वजह से कीपर जो है वो थोड़े डिसीव होते हैं, इस वजह से वो डिसअलाउ होता है। हालांकि उनका टच नहीं था, तो बहुत जल्दी एक लीड मिलती है। उसके बाद काफ़ी मौके मिलते हैं, और ख़ास तौर पे आपने मायडा की बात की, एक और हटाटू जो इनके एक जापानीज़ प्लेयर हैं, लेफ्ट हैंड साइड मिडफील्डर हैं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बनता है। और एक और स्टैंड आउट प्लेयर जॉन्स्टन जो हैं, बड़ी अच्छी, उनको भी एक मौका मिला मैच के अंदर, जो है वो नॉयर ने जो है बचा लिया। बट फिर माइकल ऑलिस क्या बेहतरीन गोल वो स्कोर करते हैं अपने राइट एंड कट इन करके। केन को जो है एक हेडर, बिल्कुल एक ओपन हेडर मिलता है, वो उसको साइड नेट कर देते हैं, और फिर उसके बाद एक बड़ा बेहतरीन गोल वो स्कोर करते हैं, तो 2-0 की लीड मिल जाती है। और उसके बाद डेफिनेटली माइडा को चांस मिलता है, जिसको पहले VAR चेक करती है, लेकिन उसके बावजूद वो जो है वो गोल अलाउ हो जाता है। अगर देखा जाए ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो मैं ये समझता हूँ कि सेल्टिक ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, और ख़ासतौर पर जो फैंस हैं, जिस तरह की एक नॉइज़, जितना शोर सेल्टिक पार्क में था। बार-बार UEFA इनको फाइन करता है, तो फिर इन्होंने एक जो उनकी एक कहते हैं ना कि एक्टिविज्म है, फिर वो एक स्टैंड पूरे वो लाल वो लाए थे, बैनर्स, लाल प्लेकार्ड्स लाए थे, और नीचे जो फैंस थे वो खड़े हुए थे रेड कार्ड फॉर इजराइल, और फिर UEFA इनके ऊपर फाइन लगाने वाले, और फिर वो 5 मिनट पे कर देंगे। नहीं, बड़ी बहादुर, बहुत बहादुर फैंस हैं, और आप तो बड़े मद्दा हैं सेल्टिक के, और राइटली सो। और ख़ास बात ये है कि ये 32 एक अनबीटन इनका रिकॉर्ड था, और आखिरी मैच अपने होम पे हार्ट से ये हारे थे, और अब जाके बायर्न म्यूनिख जैसी टीम के साथ मुकाबला था। लेकिन जो फैंस के एक रोर था, उसमें प्लेयर्स के अंदर एक नई ताकत डाली हुई थी, और हम ये देख रहे थे कि बार बार दे वर ट्राइंग, इवन दो ऑन पेपर अगर देखा जाए बायर्न म्यूनिख का स्क्वाड और कोई मुकाबला नहीं बनता, लेकिन 2-1 मैं ही समझता हूँ इस मैच को एक राइट रिजल्ट होता, ड्रॉ होना चाहिए था जिस तरह की परफॉर्मेंसेस थी। और बायर्न म्यूनिख भी जो है वो, क्योंकि मैच बायर लेवरकुसन के साथ है अब उनका, तो आई थिंक वो अपने आपको ज़्यादा थकाना नहीं चाह रहे थे, इतनी हमें रनिंग नज़र नहीं आई, इतनी हम ट्रैक बैक करना नज़र नहीं आया, हो सकता है ये एक रीज़न हो, बट आई थिंक ओवरऑल। और लेकिन अब जो इनका जो अवे फिक्सचर है, डेफिनेटली इट वुड बी टू मच फॉर सेल्टिक, too much. Let's see what happens over there in Munich. जी लतीफ़। हाँ उस्मान सही कह रहे हैं, बिकॉज सेल्टिक का मसला ये है कि अवे लेग्स के अंदर वो कम्प्लीटली कोलैप्स कर जाते हैं। इस सीजन चैंपियन लीग के अंदर हमने देखा है कि वो 7 गोल उन्होंने बार्सिलोना के अगेंस्ट भी कंसीड किए थे, 6 गोल एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट भी किए थे, तो वो उनका एक है मसला। UCL के अंदर अवे गेम्स में वो नहीं चल पा रहे हैं। यहाँ पे सेल्टिक पार्क के अंदर उनका एक जो मोमेंटम होता है जो क्राउड की तरफ से, जैसे हमने एवर्टन वाले मैच में बात की थी, यहाँ पे भी जिस तरीके का क्राउड को बैक कर रहा था, और वो 12th मैन वाला जो एक इफेक्ट प्लेयर्स के अंदर जो नजर आ रहा था, सेकंड हाफ में बहुत अच्छा खेला सेल्टिक ने, बहुत चांसेस क्रिएट भी किए, और मतलब एक दे वर राइडिंग द वेव। वो जो क्राउड का एक होता है ना, वो दे वर डेफिनेटली वो एक एनर्जी नजर आ रही थी सारे लड़कों के अंदर। एंड बायर्न म्यूनिख, उस्मान ने जैसे कहा कि वो थोड़ा उन्होंने हल्का हाथ रखा, लेकिन उनको हल्का हाथ रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बुंडेसलीगा के अंदर 8 पॉइंट की लीड ऑलरेडी अभी से है बायर लेवरकुसन के अगेंस्ट, और हारते हैं तब भी 5 पॉइंट की लीड रहनी है। आई थिंक दैट विल बी फाइनल नेल इन कॉफिन अगर वो ये वाला मैच जीत जाते हैं बायर लेवरकुसन से। हाँ एग्जैक्टली, वो तो फिर 12 गोल बुंडेसलीगा में सबसे इस वक्त जो टाइट रेस चल रही है वो बुंडेसलीगा 2 में चल रही है प्रमोशन की,
और वो बहुत ही क्रेजी इस वक्त फाइट चल रही है। क्या बात है आप तो वो भी फॉलो कर रहे हैं। आप बुंडेसलीगा 2 भी फॉलो कर रहे हैं, बड़ी बात है भाई। मैंने पर्सनली नहीं देखा बुंडेसलीगा 2 नहीं कर रहा, बुंडेसलीगा 2 फॉलो कर रहे हैं। हम सारी फुटबॉल देखते हैं। क्या बात है आपकी। चलें जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, बस मैं यही कहूंगा कि सेकंड हाफ के अंदर मैं नहीं देखता, मतलब सेकंड लेग के अंदर कि सेल्टिक आलियांज अरीना पे जाके बायर्न को इतना ट्रबल कर सके, बिकॉज फॉर श्योर दे गोना बी कम आउट फायरिंग ऑन ऑल cylinders, and I do see Bayern going through to the round of 16 for sure. Absolutely, no doubt about that. Despite how much we like them and we support them. Let's look at the newspapers. किस तरह से newspapers ने cover किया तमाम जो midweek action है उसको. We can start off with AS, and they're covering the match between City and Real Madrid, and Vinicius Junior अपने players के ऊपर चढ़ चुके हैं and बड़ा celebrate कर रहे हैं. चाउमीनी. Daily Express के front page पे Bellingham hells bells first round to Real as City hit by sucker punch. And Daily Express ये आज सुबह का है और उसमें Mersey mayhem. And Kai's injury a huge blow to Gunners, वो भी cover कर रहे थे. Yes, of course. ये सब अभी हम बात करते हैं. Marca के front page पे you've got of course Bellingham, you've got Vinicius Junior, Bravo, Madrid. And Mirror Sport के front page पे your brawl in trouble. Star Sport, shake and flag. Slot in hot water over a ref exchange and could sit out Crunch City clash. And Daily Express फिर से रिपोर्ट कर रहा है इसी चीज़ के ऊपर a slot of bother. And Guardian के front page पे वही हैंडशेक जिसकी लतीफ़ हमें बता रहे थे with the referee and Arne Slot. And Sport के front page पे you've got Gvardiol, and they're covering the match between City and Real Madrid as well. Star Sport hells bells. They think it's brawl over. And Telegraph के front page पे got Bellingham, kiss of death. Bellingham strikes as City collapses. And Ratcliffe to end 100 more jobs at Old Trafford. That's very. जब से वो आए यही चीज़ हो रही है और रिजल्ट्स तो बेहतर नहीं हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है कॉस्ट कटिंग वो किए जा रहे हैं. टेलीग्राफ के फ्रंट पेज पे अगेन एवर्टन mayhem on the Mersey. And those were all the newspapers covering the top action from midweek. And before we say goodbye to all of you, Premier League का 26th मैच डे आने वाला है. क्या देख रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे आप? Arsenal playing Leicester. Kai Havertz injured for the season. out. Exactly. और उनके पास 3 forwards हैं, रहीम स्टर्लिंग, नवारी और ट्रोसार्ड. तो अब देखते हैं कि क्योंकि अभी तो बड़ा सीजन बाकी है, चैंपियंस लीग भी है, कुछ प्लेयर्स वापस भी आने हैं आर्सेनल के लिए, बट दे हैव अ वेरी इजी फिक्सचर आई वुड से अगेंस्ट लेस्टर. लिवरपूल इज प्लेइंग अगेंस्ट वुल्व्स, जो मुझे लगता है कि दे विल सी इट ऑफ. तो फुटबॉल दिस वीकेंड एज वेल, एंड ऑफ कोर्स चैंपियंस ट्रॉफी भी स्टार्ट हो रही है. बिल्कुल सही जी लतीफ. तो आज रात को इनफैक्ट चेल्सी वर्सेस ब्राइटन है और निको जैक्सन इज आल्सो आउट फॉर 2 months नाउ. तो चेल्सी के पास भी कोई रिकग्नाइज स्ट्राइकर नहीं, बिकॉज मार्क यूवी जो हैं वो भी इंजर हैं. तो एनकुंकू इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अप टॉप, और जो रॉबर्ट सैंचेज है वो भी अब परमानेंटली बेंच हो गए लीग के अंदर, क्योंकि मेरेस्का ने कह दिया है कि यॉर्गेनसन अब उनके नए नंबर 1 हैं. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट गेम टुनाइट. उसके अलावा ऑब्वियसली बाकी गेम्स तो सब रूटीन लग रहे हैं, कोई इतना कोई अच्छा. लेकिन जो न्यूकासल वर्सेस मैन सिटी का जो गेम है वो काफी दैट इज गोइंग टू बी अ बिग वन आई बिलीव दिस वीकेंड. सिटी विल बी न्यूकासल जिस फॉर्म में चल रहा है और पूरा हफ्ता तो उन्होंने रेस्ट किए, मैं सिटी को मैं नहीं समझता कि वो हरा पाएंगे, बिकॉज सिटी का अगले हफ्ते मिडवीक के अंदर रियल के साथ मैच भी है. सिटी प्रॉब्ली गोना टेक द फुट ऑफ द गैस, और मुझे लग रहा है कि न्यूकासल पोजीशन पे भी अब वो कॉम्प्रोमाइज करने जा रहे हैं. हाँ, मुझे यही लग रहा है सिटी न्यूकासल हरा देगा सिटी को, जिस किस्म का फॉर्म न्यूकासल का और जो प्लेयर्स हैं. And the match is at St James's or Etihad? I'm not really sure about that. Okay, that's also a big factor, especially अगर वो St James पर. but उस्मान आपका बहुत शुक्रिया. Thank you for being with us. लतीफ आपका भी बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह आप लोगों से फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी. Enjoy all the top action on PTV Sports. Thank you for being with us. Take care. Good night and Allah Hafiz for now.